let me Very good morning, everyone. We were doing chapter 5, Great Indian Desert. So let me ask few questions from you to check whether you have learned the previous things or not. Okay. So let me ask you. Uh, First question is, what is the name of the desert that is located in India? Write in the chat box. What is the name of the desert that is located in India? Write in the chat box. I am reading chat side by side. Yes, I am reading it. Okay, Thar ka bete T small nahi dalo. It is a name of desert, so it should be written in capital. Very good. Thar Desert is the correct answer. We call it Western Desert also. Okay, इसका दूसरा नाम क्या है? Great Indian Desert, Thar Desert, Western Desert. Okay. Yes. Next question is, name the seasonal river that flows through the desert in India. Name the seasonal river. Very good. Yes, you are giving answers. Very good. It's the Luni River that flows through desert area. Okay. Now, tell me, next question is, name the state whose maximum part, most of the part is covered with desert. Name the state. Yes. Rajasthan की spelling wrong लिख रहे हो. And you are writing in small letter, Vanshika. It should be in capital. Rajasthan desert area को maximum cover करता है. So please take care of spellings. Okay. Now, what do we call small hills of sand? Which dislocate, which changes their place? What do we call the small hills of sand? Very good, Arshpreet. Okay, Sargun Aluwalia, Vanshika, good, Sakshi, Kapesh, very good, Viren, very good. जो बच्चे participate कर रहे हैं ना, clap for them. We call it sand dunes. हम इनको क्या कहते हैं? Sand dunes. Good. Next, what do we call the place where underground water comes up to the surface? Very good, Gaurika. You are very fast. The place where underground water comes to the surface in desert. We call it oasis. Okay, we call it oasis. Very good. So now, next question is, what type of climate is found in desert? Whether it is moderate or extreme. Option मैंने दे दी है. Type of climate found in desert. दो options में से देखना है बेटे. मैंने option दी है moderate, extreme. It is find out from very good, Krishna. Extreme type of climate. Extreme type of climate is found in desert area. Okay. Now, what type of clothes do they wear? People of Rajasthan wear which type of clothes?
colorful clothes. Gaurika clothes. They wear colorful clothes. Very good. It means you have read the chapter. Previous pages आपने पढ़ लिए हैं. Okay. What are the main languages spoken by the people of Rajasthan? Main language कौन सी वो बोलते हैं? मारवाड़ी, good. Rajasthani. Vanshika, again you are writing wrong spellings. Okay. Marwadi, Rajasthani and Hindi. Okay. So it means the things are clear to you. Chale, now start reading. अब next topic पढ़ते हैं हम festivals. Okay. So festivals. Shiven, start reading, British. Festivals. Start reading. The people of the desert celebrate all the major Indian festivals. However, the main festivals celebrated here are Tej, Gango, and Desert Festival. आपकी रीडिंग ज्यादा प्रॉब्लम है. रीड इट प्रॉपर्ली, क्योंकि कुछ वर्ड्स आप गलत बोल रहे हो. पीपल नहीं पीपल बोल रहे हो. द पीपल ऑफ डेजर्ट सेलिब्रेट ऑल द मेजर, okay, major Indian festivals. However, the main festivals celebrated here are Tej, Gangaur and Desert Festival. Clear? Next, dances पढ़ो. Again, read it. Dances. Ghumar, ma'am, dances. Dances, yes. Ma'am, मैम आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है. You should read dances. घूमर, चोरी and कचौड़ी, घोड़ी are the famous folk dances of the desert. Okay, now let me explain. वहाँ के लोग जो हैं वो कई तरह के डांस करते हैं, जैसे घूमर, चरी भी इसको बोलते हैं, चिड़ी भी बोलते हैं. Everyone. So चेरी जो डांस है, डांस फॉर्म, इसमें एक बहुत हैवी यूटेंसिल को वो अपने सिर पे रख करके डांस करते हैं, गोल गोल घूमते हैं. घूमर में तो गोल गोल घूमते हैं ना, तो वैसे ही चेरी जो है उसमें बहुत हैवी यूटेंसिल को, जैसे गागर होती है, उसको अपने सिर पे रखते हैं, उसको बैलेंस करते हैं और बैलेंस करके वो डांस करते हैं. कच्ची घोड़ी या जिसको कच्ची घोड़ी भी कहते हैं, वो भी यहाँ पर एक फेमस डांस है. उसमें क्या करते हैं, जो डांसर होता है एक नकली घोड़ी बना करके ना वो डांस करते हैं. आपने टीवी में भी देखा होगा, उसके साथ वो डांस करते हैं. ऐसा लगता है कि जो डांसर है वो घोड़ी पे बैठा हुआ है, लेकिन वो जो घोड़ी होती है वो मतलब रियल नहीं होती है, नकली होती है. उसके ऊपर वो डांस करते हैं. तो ये यहाँ के फोक डांसेस हैं जो यहाँ के लोग जो है एंजॉय करते हैं, अपने एंटरटेनमेंट के लिए डांस करते हैं. नेक्स्ट कम्स हाउसेस. तो हाउसेस के लिए आई विल गिव यू टर्न अवनी. अवनी ऑफ थर्ड फोर्थ पेइंग क्लास. अवनी हैंड रेज करो बस बेटे. बाकी के बच्चों no need to raise hand. I am giving chance roll number wise. Avni is not here, I think. Okay, then comes Vanshika. Vanshika, raise your hand.
Unmute yourself. Yes, ma'am. Read it. Houses. Houses. The houses located in the desert have thick walls and flat roofs. The thick walls help to keep the heat out so that the houses remain cool. क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी होती है बेटे, बहुत ज्यादा हीट यहाँ होती है, सैंड बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, तो इस वजह से यहाँ के लोग जो है डेजर्ट में अपना जब घर बनाते हैं वो थिक वॉल्स बनाते हैं, बहुत चौड़ी चौड़ी दीवारें बनाते हैं और उनकी रूफ्स जो होती है फ्लैट होती है। थिक वॉल्स बनाने का एक फायदा क्या होता है, इससे सन की जो हीट है ना, तो वो दीवारों के बीच में से कमरे के अंदर नहीं आ पाती। आजकल हम लोग यहाँ पे जैसे रहते हैं तो बहुत हम थिन वॉल्स बनाते हैं, तो वो इतनी चौड़ी वॉल्स नहीं बनती, जिस कारण से हमारे कमरों में हमें ज्यादा गर्मी फील होती है। लेकिन डेजर्ट के लोग जो है वो बहुत चौड़ी चौड़ी दीवारें बनाते हैं और साथ में उसमें मिट्टी से फिल करते हैं, क्योंकि जो मिट्टी होती है वो कमरे का वेदर जो है वो कूल रखती है। हम लोग सीमेंट के साथ ईंटों को जोड़ते हैं, लेकिन वहां पर राजस्थान में वो थिक वॉल्स बनाते हैं लेकिन मिट्टी के साथ उसको जोड़ते हैं, जिससे कि रूम का जो टेम्परेचर है वो लो रहता है, गर्मी कम फील होती है, तो इसीलिए उनके कमरे जो है वो ठंडे रहते हैं चाहे एक्सट्रीम टाइप ऑफ वेदर। क्लियर? नेक्स्ट कम्स ऑक्यूपेशन। यस वंशिका, read it. Vanshika, read it. Unmute yourself, Vanshika. Yes, ma'am. Read Occupation. occupation. The Occupation का meaning. people of Do you know the meaning of occupation, Vanshika? Occupation का meaning किसको आता है? Raise your hand. Who knows? Huh? their work. Yes. What do they work on money? वो कौन से काम करते हैं जिससे उनको पैसा मिलता है, अपनी लाइफ वो जी पाते हैं। तो जीने के लिए हमें कोई काम करना पड़ता है ना, उसको हम ऑक्यूपेशन कहते हैं। यस, रीड इट। The people of the Great Indian Desert mainly rear cattle, camels, and goats. Some people also grow crops such as jowar, maize, bajra, groundnut, and sesame. There is also a section of people who live a nomadic life. They move from place to place in search of water and food. They are called nomads or banjaras. बंजारास। ओके, बंजारा ये हिंदी का वर्ड है। तो ऑक्यूपेशन जो है, नाउ म्यूट योरसेल्फ वंशिका। यहाँ पर लोगों का मेन ऑक्यूपेशन, लोगों का मेन काम क्या है? कैटल को रियर करना। कैटल, अब कैटल क्या होता है? कैटल होता है एनिमल्स। क्लियर? लोगों के पास बहुत सारी काउस, बुफेलोस, गोट्स, शीप, बुल्स वगैरह होते हैं, वो उनको रियर करते हैं, उनको पालते हैं। जैसे काउस को मिल्क के लिए पाला जाता है, बुल्स को खेतों में काम करने के लिए पाला जाता है, तो दे रियर एनिमल्स, तो उसको हम क्या कहते हैं? कैटल, कैटल रियरिंग। क्लियर? तो वो ज्यादातर कैटल रियरिंग का काम करते हैं, जानवरों को पालने का काम करते हैं। मेन एनिमल यहाँ पे जो मिलता है उसको, वो होता है कैमल। वो भी हम आगे पढ़ेंगे कैमल क्यों पालते हैं। और कुछ लोग जो है वो खेती बाड़ी भी करते हैं, फार्मिंग भी करते हैं और बहुत सारी क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, जैसे कि ज्वार, मेज, बाजरा, मूंगफली उगाते हैं और सीसम होता है तिल। तो ये चीजें वहां पे उगाई जाती हैं, जो कि यहाँ का दूसरा मेन ऑक्यूपेशन। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो नोमैडिक लाइफ यूज करते हैं। अब नोमैडिक लाइफ क्या होता है? नोमड्स। नोमड्स क्या होती है? ऐसे लोग
जो एक जगह से दूसरी जगह पर हमेशा मूव करते रहते हैं, उनका परमानेंट घर नहीं होता, वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, जहां पर उनको फूड मिल जाता है, वाटर मिल जाता है, वो वहीं पे अपने टेंट लगा करके रहने लग जाते हैं। वहां का फूड फिनिश हुआ तो फिर वो अपना सारा सामान लपेट करके नेक्स्ट प्लेस पे चले जाते हैं। उनको कहते हैं नोमड्स। Here they move from one place to another in search of food and water. जहां पर उनको फूड और वाटर मिल जाता है, वहीं पर वो खुले से एरिया में अपने टेंट्स लगा लेते हैं, अपने एनिमल्स को बांध देते हैं और वहीं पर छोटा मोटा काम करके अपनी लाइफ जीते हैं, अपने दिन बिताते हैं। और लेटर ऑन जब फूड और वाटर फिनिश हो जाता है, वो अब नेक्स्ट प्लेस पे चले जाते हैं। इनको हम बंजारास भी कहते हैं। कई बार फगवाड़ा में भी बंजारास आ जाते हैं चलते चलते, तो इनको इंग्लिश में नोमड्स बोलते हैं, हिंदी में बंजारा कहते हैं। इनका कोई परमानेंट हाउस नहीं होता, दे कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्लियर? चले, नेक्स्ट है केंजल। केंजल इज हियर। I think she is not here. If you are here, Betty, raise your hand. Otherwise, next turn is next roll number 32. Roll number किसका है? Raise your hand. Khanak, is it you? Okay, Khanak, unmute yourself. Yes, Betty. Important places. Some of the important towns are cities located in the desert region are Bikaner, Bikaner, Jaipur, Jodhpur, Jodhpur, Jaisalmer, Jaisalmer, and Udaipur. Some of these places have huge havelis, forts and places which were one the homes and Rajput kings. The Great Indian Desert is a popular tourist destination. Tourists from all over the world come to explore the desert region. Okay. Important places. बेटे अभी रीडिंग इम्प्रूव करो, अभी आपको अच्छे से नहीं आनी है, 2-4 बार रीड करना इसको। ओके, तो इसमें देखो इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो है यहाँ पे जयपुर। जयपुर तो यहाँ की कैपिटल है, राजस्थान की कैपिटल अगर पूछा जाए। एकम, आई विल नॉट आस्क फ्रॉम यू, प्लीज डोंट चैट। सो जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। इसको पिंक सिटी भी कहते हैं। क्लियर? पिंक सिटी, जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान एंड इट इज अ वर्थ विजिटिंग प्लेस। टूरिस्ट यहाँ पर बहुत आते हैं जयपुर पिंक सिटी को देखने के लिए। इसके साथ साथ उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, ये सारे प्लेसेस देखने के लिए लोग यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। बहुत बड़ी बड़ी हवेली, ह्यूज हवेलीज हैं, फोर्ट्स हैं, किले बने हुए हैं, जहाँ पर राजपूत राजा जो थे वो रहा करते थे। उनके इतने बड़े बड़े महल, उनके इतने बड़ी बड़ी किले जो हैं वो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट हर साल विजिट करते हैं। और डेस्टिनेशन होता है मंजिल, लोगों को देखने के लिए यहाँ पे बहुत चीजें मिल जाती हैं, तो इसलिए बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज कैमल, शिप ऑफ द डेजर्ट। यहाँ का मेन एनिमल जो है वो कैमल होता है, जिसको शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहते हैं। आई विल रीड इट बिकॉज टाइम इज लेस।
A camel is called the ship of the desert as it is the main means of transport in the desert. इसको डेजर्ट का शिप कहा जाता है क्योंकि ये यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की तरह यूज होता है, मतलब एक पर्सन्स को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाती है। क्योंकि इसके जो फीट होते हैं ना वो बहुत लॉन्ग होते हैं और पैडेड होते हैं जो रेत के अंदर धंसते नहीं है। सो कैमल फीट आर लॉन्ग एंड पैडेड दैट इनेबल it to walk easily on sand, जो कि सैंड पे इसको इजीली चलने में हेल्प करती है। और दूसरी क्वालिटी इसकी क्या है, इसकी बैक पे एक हम्प होता है। हम्प देखो, आई एम शोइंग यू, यहाँ पे कैमल की बैक के ऊपर ये हम्प होता है। तो हम्प से सी ये थोड़ा सा ऊंचा उठा होता है हम्प, तो यहाँ से इसके अंदर फूड को स्टोर करके रखते हैं। फूड और वाटर इसके अंदर स्टोर रहता है, जिस कारण से कैमल कई दिनों तक बिना पानी के और बिना फूड के रह लेता है। क्योंकि डेजर्ट में वैसे ही पानी की कमी होती है, तो ऐसे एनिमल ही वहां पे सरवाइव करते हैं जो पानी के बिना रह लेते हैं। इसीलिए जो कैमल है इसके अंदर ये क्वालिटी है, और यही जो एनिमल है यहाँ पर मेनली यूज किया जाता है। इसीलिए इसको शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं कि डेजर्ट के अंदर ये एनिमल ज्यादातर मिलता है। बियॉन्ड बॉर्डर्स पढ़े, द सहारा डेजर्ट लोकेटेड इन अफ्रीका। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर एक डेजर्ट है जिसका नाम है सहारा डेजर्ट। वो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। तो डेजर्ट एरिया में पानी की बहुत कमी है, लेकिन इंदिरा गांधी कैनाल, डिड यू नो में आप पढ़ोगे, इंदिरा गांधी कैनाल एक बनाई है, सतलुज रिवर से वो पानी लेकर के डेजर्ट में पहुंचाती है। कैनाल होती है छोटी सी नहर, क्लियर, और वो ड्रिंकिंग वाटर के लिए लोग उसको पानी पीने के लिए यूज करते हैं। जो बहुत शॉर्टेज थी पानी की, तो उससे कई लोगों को दूर दूर तक पानी भरने जाना पड़ता था। लेकिन इंदिरा गांधी कैनाल आने से, इंदिरा गांधी कैनाल बन जाने से, तो लोगों को जो डिफिकल्टी थी उससे थोड़ी राहत मिली है, क्योंकि अब वो इजीली पानी ले सकते। सो एक और वैल्यू कॉर्नर है यहाँ पे, इसमें लिखा हुआ है कि कुछ लोग टूरिस्ट जो होते हैं वो फोर्ट्स में जाते हैं या किंग के पैलेस को देखने जाते हैं, दे स्क्रिबल ऑन द वॉल्स, तो वॉल्स को खराब कर देते हैं, उसके ऊपर अपना नेम लिखाते हैं। दिस इज रॉन्ग, क्योंकि ये हमारा हेरिटेज है, हमें इसको संभाल के रखना है, और ताकि आने वाले लोग भी जब इसको देखें तो उसको मतलब उनको गंदा ना लगे। तो ऐसी चीजों को जो किसी कल्चर को दिखाते हैं उसको हमें स्क्रिबल नहीं करना चाहिए, उसको हमें साफ रखना चाहिए, और हमें उसको उसकी ब्यूटी को ऐसे ही मेंटेन करना चाहिए। So I hope the lesson is clear. Now if you have any doubt you can ask me.